computer. Yes, now it is working. Okay, friends, now it is working. So you have asked for question number 25. Okay. So question number 25. But this question says that L is equal to a b to the power 5, a b to the power 5, then it is w b to the power 2 such that w belongs to a comma b asterisk. So this is the language. If you carefully look at what this problem simply says that your word should start with a b to the power 5, means it should start with an a followed by 5 number of b's, and then it should end with 2 b's, and in between any word w can come, where w belongs to a comma b asterisk, means w can be any word over a and b. Simply all the words over a and b which starts with an a followed by 5 b's and end with 2 b's will be accepted. Is it clear or not, class? Problem is clear? Your word should start with a followed by 5 b's and it should end with 2 b's. Like we say that our word should start with an a and should end with an b. So in between anything can come. So a plus b asterisk. So this kind of regular expression we write. Okay. So simply we can write this thing something like this. Our words are of the form a, w, b such that w belongs to a comma b asterisk. Is it or not? So simply it should start with an a, it should end with an b. In the similar manner, it should start with a b to the power 5 and it should end with b to the power 2, means 2 b's. Okay. Is it clear or not? Class. Yes, sir. Now you can do it or I should do it? Still there is problem, or you were not understanding the problem, or there was problem in doing it? सर डिजाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है. ओके ओके, सो लेट अस डिजाइन. ऑब्वियस सी बात है, ये जो भी बनेगा हमारा किससे बनेगा? सक्सेस पाथ से, क्योंकि हमें एक पैटर्न दिया हुआ है कि इससे स्टार्ट होना चाहिए और इससे एंड होना चाहिए. इज इट? सो लेट अस मेक द पैटर्न. स्टार्ट स्टेट, देन it should start with an a. So first we will remember that a has come and then 5 b's are there. Okay, so 1 2 3 4 b's and then 5 b's has come. Okay, अब इसके बाद बीच में कुछ भी आ सकता है और इट शुड एंड विद, मतलब अगेन मैंने कहा था सक्सेस पाथ जब भी बनाएंगे तो शॉर्टेस्ट वर्ड से बनाएंगे. आप अज्यूम कर लीजिए W इज नल, तो शॉर्टेस्ट वर्ड इस लैंग्वेज में क्या होगा? a b to the power 5 b to the power 2 means a b to the power 7. So 7 b's should come. So 2 more b's I will be drawing here, and then this is the success. So success path we have made. Okay, up till this point, just 1 minute. Up till this point, our first part, starting part is a b to the power 5 और इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो b to the power 2 के लिए. अब हम इसको कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं. मेरी स्टार्टिंग a से होनी चाहिए. इज इट? इससे होनी चाहिए, मेरी स्टार्टिंग a से होनी चाहिए. तो a से स्टार्टिंग नेसेसरी है, बट अगर b से होगी तो इट विल बी ए फेल्योर. ओके, सो आई शुड मेक ए फेल स्टेट बिलो इट. a b फेल स्टेट है. अगर मेरा b आया, इट विल ब्रिंग मी हेयर, इट विल बी अ परमानेंट फेल्योर. तो सेकेंड लेटर शुड बी b. इज इट?
क्या ये ए हो सकता है? ना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ए के बाद अगला ए नहीं चाहिए मुझे, अगला क्या चाहिए, अगले 5 लेटर कंटिन्यूशन में क्या चाहिए, बी चाहिए। ओके, तो अगर ए आता है देन इट विल बी द फेल्योर। इसी तरह से सेकंड लेटर के बाद थर्ड लेटर भी मुझे बी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब बी चाहिए, तो इनमें से किसी की भी जगह अगर ए आएगा सो इट विल बी ए फेल्योर। इट विल बी ए फेल्योर। 1 2, पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी, चौथा बी, और इस जगह तक ये सब। इज इट? अब मेरे के पास क्या है, पांचवा बी, यानी कि मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया, यानी कि मुझे ए से स्टार्टिंग हुई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा बी मिला, तो मैं इस स्टेट पर पहुंच गया। ओके, अब इस स्टेट पर जब मैं पहुंच गया तो अब सक्सेस के लिए मुझे क्या चाहिए, आगे बी, यानी कि ये वाला पहला वाला पार्ट मेरा फिनिश हो गया। अब आगे अगर बी मिलते हैं तो मैं इधर बढ़ूंगा, लेकिन अगर ए मिलते हैं तो क्या करूंगा, अगर ए मिलते हैं तो क्या करना चाहिए मुझे, जस्ट टेल मी। अगर ए मिलते हैं तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? यही स्टे करेंगे सर। यहीं पर स्टे करेंगे, देयर विल बी ए सेल्फ लूप। ओके, सो मैंने सेल्फ लूप बनाया, यहीं पे स्टे किया। अब मेरे को जो है ए जब तक मिलता रहा मैं यहीं पे स्टे करूंगा, यानी कि अभी मेरा ये बी वाला पार्ट सक्सेस के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 बीस चाहिए, इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स, इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स मुझे सक्सेस के लिए क्या चाहिए, 2 बी चाहिए, और वो 2 बी एंडिंग 2 लेटर्स होने चाहिए। इज इट? तो इसलिए जब तक ए मिलेगा आई विल स्टे हियर, जैसे ही बी मिलेगा मैं आगे मूव कर जाऊंगी, शायद मेरे सेकंड लास्ट बी मिल गया, मेरे को सेकंड लास्ट लेटर मिल गया, दैट इज बी। ओके, अब अगर ऐसा है तो मैं इस जगह पे पहुंच गया। अब अगर एक और बी मिला तो सक्सेस पे पहुंचूंगा, लेकिन अगर बी नहीं मिल करके यहाँ ए मिल गया तो, ए मिल गया तो क्या होगा, आई विल मूव बैक, क्योंकि ए मिलते ही जो अभी एक बी मिला था ये मेरा बेकार हो गया। मुझे सक्सेस के लिए वापस क्या चाहिए, अगेन 2 बीस चाहिए, और वो 2 बीस क्या होना चाहिए, लास्ट। तो इसलिए मैं इस स्टेट पर वापस आऊंगा, इस स्टेट पर वापस आऊंगा, और फिर जैसे ही बी मिलेगा फिर वापस यहाँ आऊंगा। मान लीजिए अब सपोज मुझे अगला बी भी मिल गया, 2 बी कंटिन्यूशन में मिल गए। अब अगर यहीं पे मेरा, अब मैं फाइनल स्टेट पर पहुंच गया, लेकिन अगर मेरा स्ट्रिंग यहीं पे फिनिश होता तब तो ये सक्सेस फाइनल है, लेकिन अगर यहाँ मेरा स्ट्रिंग फिनिश नहीं होता तो क्या होगा। तो फॉर दैट आई हैव टू चेक कि इन 2 बीज के मिलने के बाद मुझे अगर कोई ए या बी मिलता है तो कहाँ जाएगा, अगर मुझे ए मिलता है तो कहाँ जाएगा, अगर ए मिलता है तो वापस मुझे सक्सेस के लिए क्या चाहिए, वापस सक्सेस के लिए क्या चाहिए, 2 बीज चाहिए। सो ऑन ए आई विल बी मूविंग टू दिस स्टेट जहां से मैं 2 बी लेकर के वापस सक्सेस पर आ सकूं। और अगर मेरे को बी मिलता है तो मैं क्या करूंगा, तो आई विल स्टे हेयर ओनली। क्यों? क्योंकि 2 बी लेकर के मैं यहाँ आया था, बट अगर तीसरा बी आ गया तब भी लास्ट 2 लेटर्स तो बी हैं, इट विल एंड विद ए डबल बी। इज इट और नॉट? तो इसलिए जब तक मुझे बी मिलता रहेगा आई विल स्टे हेयर, क्योंकि बी मिलने पे यहाँ मेरे जो लास्ट के 2 लेटर्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, डबल बी। तो यानी मेरा वर्ड अगर वहां एंड करता है तो किससे एंड करेगा, डबल बी से। दैट्स वाई ऑन बी आई विल स्टे हेयर। लेकिन अगर मेरे को ए मिला तो मेरे जितने भी बी मिले थे, लास्ट जो 2 बी मिले हुए थे, वो क्या हो गए, वेस्ट हो गए, बेकार हो गए। तो मुझे वापस सक्सेस के लिए क्या चाहिए, वापस 2 बीज चाहिए। तो दैट्स वाई आई विल मूव बैक हियर, जहां से मैं 2 बी लेकर के वापस आ सकूँ। अगर 2 बी मिले तो यहाँ वापस आऊंगा, अगर 2 बी नहीं मिले तो जहां भी फिर डेस्टिनी होगी वहां पर एंड करेगा एंड योर स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड। और अगर 2 बी मिले और सक्सेस पे पहुंचा और वहां मेरा एंड हुआ, या 3 बी मिले या 4 बी मिले, यानी कि अल्टीमेटली लास्ट 2 लेटर्स मेरे बीज हैं, तो मेरा इस स्टेट पर फिनिश करेगा और इट विल बी सक्सेसफुल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन क्लास। यस सर। यस Okay. सर। सो 25 इज क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट 28 26 27 हमने कल डिस्कस कर लिया था। 28 ओके। 28 जो है वो बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें केवल अंडरस्टैंडिंग की बात है। क्वेश्चन नंबर 28। ओके, लेट मी चेंज द कलर सो दैट इवन दोनों मिक्स नहीं हो। ओके, so question number 28 says that L is UWV. UWV. So it is concatenation of 3 strings U, W and V, where U, W, V, this all belongs to A, B string। यानी कि ये जो है A और B पे कोई भी वर्ड हो सकता है। अगर केवल इतना ही होता तो ये देखिए, ये क्या था, आपकी एक्सप्रेशन क्या बनती, A प्लस बी एस्ट्रिक।
ए प्लस बी एस्ट्रिक, ये तो आया u की जगह, ये आया w की जगह, और ये आता b की जगह a प्लस बी एस्ट्रिक। और अगर तीनों ही a प्लस बी एस्ट्रिक, a प्लस बी एस्ट्रिक, a प्लस बी एस्ट्रिक, यानी कि कोई भी वर्ड ए बी पे, कोई भी वर्ड ए बी पे, कोई भी वर्ड ए बी पे, तो तीनों को मिला भी लेते तब भी तो कोई भी वर्ड ए बी पे बनता, तो क्या होता है, इट वुड हैव बीन a प्लस बी एस्ट्रिक, सिंपल, इज इट। लेकिन अब इसमें इसके साथ एक कंडीशन और ऐड की हुई है, दैट एंड लेंथ ऑफ v इज इक्वल टू 2। अब जैसे ही मैंने कहा लेंथ ऑफ v इज इक्वल टू 2, तो यहाँ ये लास्ट वाला जो v के लिए था, a प्लस बी एस्ट्रिक ना होकर के ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी टू द पावर 2, इज इट। तो अब ये एक्सप्रेशन बनी। अब अगर ये एक्सप्रेशन बनी तो सिंप्लीफाई होकर के क्या आएगी, देखिए दोनों a प्लस बी एस्ट्रिक, a प्लस बी एस्ट्रिक, तो सिंगल a प्लस बी एस्ट्रिक है। दो वर्ड्स कोई भी जो a और b पे इससे बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं, वो सिंगल a प्लस बी एस्ट्रिक से भी बना सकते हैं, इज इट। सो इट विल बी a प्लस बी टू द पावर 2। बेसिकली व्हाट इट इज all words having length 2. So L is what? All words having length 2. ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, ओके। अब इसमें कुछ नहीं करना, देखिए प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, बस आपको एनालाइज करके प्रॉब्लम को अपनी सिंप्लीफाई करना। अब जैसे ही आपको ये समझ में आया कि लैंग्वेज इज नथिंग बट ऑल वर्ड्स ओवर ए एंड बी हैविंग द लेंथ 2 और मोर इसलिए क्योंकि 2 तो इस v से ही आ जाएगा, बाकी इससे कुछ भी हम जनरेट कर सकते हैं, इज इट। तो अब आपका क्लियर हो गया, सिंपल हो गया। अब आप क्या करेंगे, दो लेंथ वाले वर्ड्स अगर जनरेट करने हैं तो स्टार्ट a कॉमा b, ये आपकी लेंथ 1 हो गई। लेंथ 1 वाले सारे वर्ड्स यहाँ पे फिनिश करेंगे। फिर लेंथ 2 चाहिए तो a कॉमा b यहाँ हो गई, ये आपकी फाइनल स्टेट हो गई। और उसके बाद एक a प्लस बी का सेल्फ लूप लगा दीजिए। तो देखिए 2 लेंथ वाले सारे वर्ड्स यहाँ एंड करेंगे, उसका 3, 4, 5, 6, 7 किसी भी लेंथ के सारे वर्ड्स क्या करेंगे, इसी जगह पे एंड करेंगे, एंड इट इज ए फाइनल स्टेट। So all words which are having length 2 or more will get accepted. So it is the FA corresponding to this language. I hope it is clear. The only thing was to understand this problem. बनाना मुश्किल नहीं था, बट इसको समझना जो है आवश्यक था। समझ आया सबको क्लास? Yes, sir. Okay. So now we move to the next problem, that is the problem number 29. सबसे हो गई या किसी की प्रॉब्लम है ये? Sir, हो गई, done. Everybody has done? Okay. So I am leaving it. Again इसमें देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ डिजिट्स mod 3 is equal to 0. mod 3 यानी रिमाइंडर वाला फंक्शन आ रहा है, तो रिमाइंडर वाला फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट्स लेनी 0, 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। उसे सम ऑफ डिजिट्स कैसे मूव करेगा, 0, 1, 2। अगर 0 आ रहा है तो देखिए सम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जब सम पे फर्क नहीं पड़ा तो रिमाइंडर पे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 आ रहा है कहीं से भी तो सम 1 बढ़ेगा, सम 1 बढ़ेगा तो रिमाइंडर भी 1 बढ़ेगा, इज इट। तो अगर रिमाइंडर 0 था तो 1 हो जाएगा, 1 था तो 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 2 मिल रहा है आपको कहीं पे तो सम ऑफ डिजिट कितना इंक्रीज करेगा, 2 इंक्रीज करेगा, तो रिमाइंडर भी 2 इंक्रीज करेगा, इज इट। तो अगर पहले 0 था तो अब 2 हो जाएगा, पहले 1 था तो अब 3, अब 3 तो कहीं आता नहीं रिमाइंडर में, तो 3 का मतलब क्या है 0, ओके। इसी तरह से अगर 2 था तो 4 हो जाएगा, 4 का मतलब क्या है 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, इज इट। तो इस तरह से आप इसके ट्रांजिशंस इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। होपफुली आपने सबने इसी तरह से किए होंगे। सो नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया? Yes, sir. Everybody Yes, has sir. done? Okay. ये सभी ने कर लिया? इसमें मुझे डाउट है थोड़ा सा, हालांकि एक आध किसी ने मुझसे इसके जो है एक्सप्लेनेशन मांगा था कि इसमें कौन से वर्ड्स होंगे कौन से नहीं होंगे। आई वांट टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम, एक बार चेक कर लीजिए वेदर व्हाटसएवर यू हैव डन दैट इज करेक्ट और नॉट। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 30. It is 0 asterisk, 1 asterisk, 2 asterisk. Simply some number of zeros followed by some number of ones followed by some number of twos. अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ टूज बराबर हो ये भी जरूरी नहीं है। इससे क्या हो सकता है, केवल जीरोज भी जनरेट हो सकते हैं। मान लीजिए इस वाले स्टार के लिए आप 0 ले लीजिए, इस वाले स्टार के लिए 0 ले लीजिए, तो केवल, और इस वाले स्टार के लिए सपोज 5 ले, देयर विल बी 5 जीरोज ओनली।
So some only zeros can be generated, only ones can be generated. अगर वही इसी स्टार की जगह आप जीरो लीजिए, इस स्टार की जगह जीरो लीजिए, only ones you can generate. In the similar manner, only twos you can generate. You can generate the combination of zeros and ones. Some zeros followed by some ones. You can also generate combination of zeros and twos. Some zeros followed by some twos. There will be no one. कोई वन नहीं होगा उसके अंदर, कुछ जीरो होंगे, कुछ टू होंगे. Is it? और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वन हो, कुछ टू हो, और ऐसा भी हो सकता है कुछ जीरो हो, कुछ वन हो और कुछ टू हो. सो बेसिकली दिस सिंगल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी लैंग्वेजेस. इज इट? सो हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? और इसको इसी रेस्पेक्ट में समझ करके आपने किया है या कुछ और किया है? ओके, लेट मी डिस्कस इट्स सॉल्यूशन क्विकली. अगर आपका सॉल्यूशन वही आया है तो देन इट इज़ वेरी गुड, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सीख लिया है. और अगर कुछ डिफरेंट है तो उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे. तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट स्टेट. ठीक है, अब मुझे क्या करने हैं, जीरोज एक्सेप्ट कराने हैं. मुझे क्या कराने हैं, जीरोज एक्सेप्ट कराने हैं. सो और चूंकि इसमें नल भी एक्सेप्ट होगा, आप देखिए इसकी जगह भी जीरो ले लीजिए, इसकी जगह भी जीरो ले लीजिए, इसकी जगह तीनों स्टार की जगह जीरो ले लीजिए, तो देन यू कैन जनरेट नल. सो नल विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज. सो दैट्स व्हाई स्टार्ट स्टेट शुड बी दी फाइनल स्टेट एज वेल. नंबर वन. उसका जीरो एस्ट्रिक. ओके, मैं जीरो को यहीं पे रखता हूँ. ठीक है, जीरो को यहीं पे रखता हूँ. कुछ लोग कहेंगे जीरो के साथ वन को भी यहीं रखिए, टू को भी यहीं रखिए, यानी कि कॉमा वन कॉमा टू. दिस डिजाइन इज करेक्ट? नो सर. Why it is not correct? सर या तो जीरो कंसेक्यूटिव वे में होने चाहिए, फिर वन कंसेक्यूटिव में होने चाहिए, yes, फिर होने चाहिए. अगर हम सब सेल्फ लूप में कर देंगे तो our zeros, ones and twos will get mixed. जीरो के बाद वन आ सकता है, वन के बाद जीरो आ सकता है, टू के बाद जीरो आ सकता है, टू के बाद वन आ सकता है. जबकि इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर एक बार मुझे वन मिलने शुरू हो गए तो मुझे जीरो नहीं मिल सकते. फिर जीरोज आर नॉट अलाउड. एक बार अगर मुझे टू मिलने शुरू हो गए तो मुझे ना तो वन मिल सकते हैं ना जीरोज मिल सकते हैं. दैट्स व्हाई आई विल नॉट मिक्स दीज. आई विल नॉट राइट इट लाइक दिस. ओके, जस्ट 1 मिनट. सो जीरो पर तो सेल्फ लूप ठीक है. इसके बाद अगर मेरे को वन मिलता है तो आई मस्ट चेंज दी स्टेट. सो ऑन वन आई हैव चेंज दी स्टेट. यानी कि अगर मैं इस स्टेट पे पहुंचा तो इसका मतलब क्या है कि मेरे सारे जीरोज फिनिश हो चुके हैं. सारे जीरोज मैंने यहीं फिनिश किए, सारे जीरोज फिनिश हो चुके हैं और मेरे वन मिलने स्टार्ट हो गए. यानी इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, जीरो सब मिल चुके हैं और एक वन लेकर के मैं यहाँ आया हूँ. अब इस स्टेट में मुझे क्या मिल सकता है, मुझे केवल वन मिल सकता है. तो जितने भी वन मिलेंगे उन सबको मैं यहाँ एंड करूंगा. और चूंकि sequence of zeros and ones is also accepted, so that's why this will be the final, this will also be the final state. Is it? So zero asterisk, one asterisk मैंने इसको किया. उसके बाद अब ones जब finish हो जाएंगे तो मुझे टू मिलेंगे, तो टू मिलेंगे. अगर मुझे टू मिलता है तो again I have to change the state. I will come here plus and then all twos I will get accepted here. So एक तरह से आप देखिए मैंने सक्सेस पाथ जो है बना लिया है. और जीरो एस्टिक, वन एस्टिक, टू एस्टिक. अब मुझे क्या करना है, इसके ट्रांजिशंस कंप्लीट करने. ठीक है, इसका जीरो पे ट्रांजिशन है, वन पे ट्रांजिशन है, टू पे कहाँ जाएगा. क्योंकि जीरो के बाद जरूरी नहीं वन आए, तो अगर मुझे टू मिलता है तो डायरेक्टली टू पे जाऊंगा और जितने भी टूज हैं ये सब मेरे जो है यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे. इज इट? तो दैट्स वाई ऑन टू आई विल बी मूविंग डायरेक्टली टू दिस स्टेट. इज इट? सो इसका जीरो वन टू पे ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया. अब वन पे कंप्लीट है, लेकिन इसका जीरो पे और टू पे कंप्लीट है. इसका जीरो पे ट्रांजिशन नहीं है. अगर इस स्टेट में मुझे जीरो मिलता है तो क्या होगा, इट विल बी फेल्योर एंड इट विल बी ए परमानेंट फेल्योर. ओके, सो दैट्स व्हाई आई विल ड्रॉ ए स्टेट, ए फेल स्टेट हेयर, जीरो वन एंड टू. यानी कि अगर वन मिलने के बाद मेरे को जीरो मिला, so I will go to this fail state. This will be a failure, is it? So I will move here. Similarly, अब इसका देखिए जीरो पे है, वन पे है, टू पे है, अब इसका केवल टू पे है. अब अगर इससे मुझे वन या जीरो मिले, यानी टू मिलने के बाद वन या जीरो मिले, तो देन अगेन इट इज द फेलियर. सो यानी कि मैं इसका ट्रांजिशन बना सकता हूँ. यानी कि जीरो या वन अगर मेरे को मिलता है तो आई विल गो टू दी फेल स्टेट. इज इट? सो आपने इसी तरह से बनाया, कुछ और बनाया? Yes, sir. Okay, then it is very good.
क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है कोई प्रॉब्लम 31, 32, 33 तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, सो लेट अस कम टू द प्रॉब्लम 34। ये हो गया सर 35 बता दीजिए। यस सर 35 बता दीजिए। 34 हो गया, पहले ये बताइए। यस सर। यस सर। 34 कैसे किया? सर प्रवीण सर ने कराया स्टेप का। अच्छा 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 अच्छा, तो मुझे एक बार हल्का सा बताइए कैसे करवाया उन्होंने, मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्या लिया आपने? सर पहले क्योंकि ट्रांजिशन टेबल बनाई रिमाइंडर के थ्रू 0 1 2 हाँ, 3। अच्छा अच्छा, ओके, फिर फिर उसके रेस्पेक्ट में बनाई, 0 का हमने Q0 लिया, Q1 लिया ऐसे, हाँ हाँ और हाँ, मल्टीप्लाई 2 से +1 0 करके वो मॉड निकाला कि कौन सी ट्रांजिशन कहाँ जा रही है। अच्छा ठीक है, सर वो ओके फॉर्मूला यूज करके। ओके, मैं समझ गया समझ गया। मैं इसको एक हल्का सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट कई जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम बेस्ड है इस चीज़ पे कि आपका जो स्ट्रिंग है वो तो बाइनरी है, बट आपको उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लेना है, और उस डेसिमल इक्विवेलेंट को डिविजिबल बाई 4 करना है। अब देखिए डिविजिबल बाई 4 है तो ये हमारी मॉड वाली प्रॉब्लम होगी। सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 34। जस्ट लेट मी चेंज द कलर। क्वेश्चन नंबर 34 इज इट? सो इसमें क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 34, ये है क्या, एक्सेप्ट बाइनरी स्ट्रिंग whose decimal equivalent is divisible by 4, divisible by 4। तो डिविजिबल बाई 4 यानी कि मॉड वाली प्रॉब्लम है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट, 3 स्टेट आपने फटाफट से बना ली, 4 स्टेट आपने फटाफट से बना ली होंगी रिमाइंडर्स के कोरस्पॉन्डिंग। एक तो रिमाइंडर 0 के कोरस्पॉन्डिंग, एक रिमाइंडर 1 के कोरस्पॉन्डिंग, एक रिमाइंडर 2 के कोरस्पॉन्डिंग, और एक रिमाइंडर 3 के कोरस्पॉन्डिंग। इज इट? इतना तो आपने कर लिया होगा। इसमें आपकी स्टार्ट स्टेट 0 वाली होगी, ये भी समझ में आता है, और यही आपकी फाइनल स्टेट भी होगी। यहां तक तो सब समझ में आ रहा होगा, इज इट? अब इसमें जो है कॉन्सेप्ट ये है कि बाइनरी स्ट्रिंग है और डेसिमल इक्विवेलेंट लेना है। तो आप एक ये देखिए बाइनरी स्ट्रिंग और डेसिमल इक्विवेलेंट का रिलेशनशिप क्या है। जब हम कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग पढ़ना रीड करते हैं, जैसे सपोज मेरे पास बाइनरी स्ट्रिंग में सपोज 0 है, इधर की तरफ लिख लेते हैं, सपोज मेरे पास 0 है, 0 है तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, ये मैं लिख रहा हूं बाइनरी में। अब मैं इधर की तरफ देखता हूं डेसिमल, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, इसकी डेसिमल वैल्यू भी 0 होगी, इज इट? अगर ये 1 है तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, इसकी डेसिमल वैल्यू भी 1 होगी। लेकिन अब इसके बाद मैं एक 0 ऐड कर दूं तो भी इसकी डेसिमल वैल्यू 0 रहेगी। लेकिन अगर मैं इसका 0 ऐड ना करके, जस्ट 1 मिनट, अगर मैं 0 ऐड ना करके 1 ऐड कर देता, 1 ऐड कर देता, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, इसकी वैल्यू हो जाती डेसिमल 0 की जगह इसकी वैल्यू हो जाती 1। सिमिलरली अगर मैं इस जगह पे आप देखिए 1 है, इसके बाद अगर एक 0 ऐड कर दूं तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की जगह क्या हो जाएगी 2, डबल हो गई। अगर इस 0 की जगह, अगर ये 1 था मेरे पास और इस 0 की जगह मैं 1 ऐड करता तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या हो जाती 3, यानी डबल प्लस 1। तो अगर आप इसी नंबर्स को और भी आगे ऑब्जर्व करें इसी तरह से, जैसे अब 1 1 है मेरे पास, 1 1 की वैल्यू क्या है 3 है, अगर इसके आगे मैं एक 0 ऐड कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की जगह क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर ऐसे मेरे पास 1 1 था और इसके आगे मैं एक और 1 ऐड कर दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो एक तरह से हमने इस ऑब्जर्वेशन से ये देखा, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑल्सो, कि जब भी आप बाइनरी नंबर्स को लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं तो जो भी नंबर आपने रीड किया, अगर इफ यू आर रीडिंग ए 0 देन योर नंबर वैल्यू गेट्स डबल्ड। अगर आप एक 1 रीड करते हैं देन योर नंबर वैल्यू गेट्स डबल्ड प्लस 1, डबल प्लस 1 हो जाती है। और जिस तरह से आपका नंबर बढ़ेगा उसी तरह से आपका
रिमाइंडर भी बढ़ेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट वी कैन यूज है, उससे हमें किसी टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो दिस इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट भी ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं एडिशनली आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि कई जगह पे ये कॉन्सेप्ट भी कुछ प्रॉब्लम में काम आता है। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर मेरे को जीरो मिलता है, तो देखिए अभी रिमाइंडर की वैल्यू मेरी जीरो है, तो जो भी नंबर आ रहा होगा, जो भी सम आ रहा होगा, उसकी वैल्यू डबल होगी। तो डबल होगी, बट डबल भी हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर रिमाइंडर जीरो आया तो रिमाइंडर भी डबल होगा, रिमाइंडर जीरो था तो वो भी जीरो ही रहेगा। तो जीरो पे मेरा क्या आएगा, सेल्फ लूप। इसी तरह से अगर मेरा वन आता है इस कंडीशन में, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल प्लस वन, जीरो का डबल प्लस वन यानी कि वन। सो ऑन वन आई विल बी मूविंग टू दिस स्टेट। ओके, इसी तरह से अब मेरा अगर रिमाइंडर वन है, अगर मेरे को एक जीरो मिलता है तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वन की जगह क्या हो जाएगा, वन का दुगना टू। सो जीरो पर आई विल बी मूविंग ऑन टू। ओके, लेकिन अगर वन मिलता है तो क्या होगा, तो वन का डबल प्लस वन, वन का डबल यानी टू प्लस वन यानी कि थ्री। सो ऑन वन आई विल बी मूविंग टू थ्री। इसी तरह से अब मैं टू पर आ गया। अब टू है मेरा रिमाइंडर, अगर जीरो मिलता है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, फोर। अब लेकिन फोर रिमाइंडर तो इसमें है ही नहीं। अगर फोर रिमाइंडर नहीं है तो इसका मतलब उसको वापस आप थ्री से मॉड करके देख लीजिए। फोर का थ्री से मॉड करने पे क्या आएगा, वन। सो यानी कि ऑन जीरो यू विल बी गोइंग बैक टू वन। इज इट क्लियर? दो का दुगना चार हुआ, चार का रिमाइंडर क्या आया, वन। ओके, इसी तरह से अब अगर मेरे को वन मिला तो दो का दुगना प्लस वन यानी कि चार प्लस वन यानी पांच। ठीक है, और पांच का रिमाइंडर क्या आया, तीन से टू, यानी कि ऑन वन देर शुड बी ए सेल्फ लूप। ऑन वन देर शुड बी ए सेल्फ लूप। इज इट? इसी तरह से तीन का कंप्लीट करेंगे। अगर थ्री है, जीरो मिलता है तो क्या हो जाएगा, सिक्स। सिक्स का रिमाइंडर, सॉरी एक मिनट, जस्ट वन मिनट, मैंने यहाँ शायद कुछ गलती कर दी। टू का, सॉरी जस्ट वन मिनट, अगर कहीं गड़बड़ हो जाएगा कर तो आप लोग बीच में टोक दिया करिए। यहाँ जब हम टू का डबल कर रहे थे, टू पे जीरो आया था हमारा, तो टू का डबल कर रहे थे तो फोर, और फोर का, एक मिनट मैंने शायद और भी चीज़ें गलत कर दी, थ्री नहीं, यस और भी गलत हो गई, जस्ट वन मिनट, इरेजर। यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, अब जब हम टू के लिए देख रहे थे, तो अगर जीरो मेरे को मिलता है तो टू का डबल क्या आएगा, फोर। और फोर का, फोर से मॉड अगर करेंगे, चूंकि हम मॉड फोर से कर रहे हैं ना, मॉड जो है वो, एक मिनट जस्ट वन मिनट, हाँ मॉड फोर से कर रहे हैं, तो टू का डबल आया फोर, और फोर का मोड फोर क्या आएगा, जीरो। सो ऑन जीरो आई विल बी मूविंग टू दिस। ऑन वन इट इज डबल प्लस वन, टू दो दूनी चार प्लस एक पाँच, पाँच को अगर चार से जो है करेंगे तो इट विल बी वन। ओके, सो ऑन वन आई विल बी मूविंग बैक टू वन। इस तरह से तीन का है, अगर जीरो मिलेगा तो तीन दूनी छः, और छः को आप चार से करेंगे तो आएगा टू। सो ऑन जीरो आई विल बी मूविंग हेयर, और तीन दूनी छः प्लस वन, अगर मेरे को वन मिलता है तो डबल प्लस वन, तो यानी कि सेवन, और सेवन को मैं फोर से करूँगा तो इट इज़ थ्री। सो इट विल बी ए सेल्फ लूप ओवर वन। आप चेक कर लीजिएगा, आपने जो बनाया होगा उसके ट्रांजिशन यही आ रहे होंगे। तो इस तरह से भी आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? क्लास, इट इज क्लियर? यस सर। ओके, और अगर इस सब तरह से नहीं भी समझ में आया तो आप जो है ऑलरेडी टेबल वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ चुके हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं। इज इट? नाउ कम ऑन दी क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या, कंस्ट्रक्टेड डीएफए दैट एक्सेप्ट्स बाइनरी स्ट्रिंग whose decimal string, whose decimal equivalent, ये स्ट्रिंग नहीं है, whose decimal equivalent is divisible by 2 but not divisible by 3। इसे करने के दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड, चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, बाइनरी string whose decimal equivalent is divisible by 2 but not
divisible by 3. अब एक तरह से अगर देखें तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रॉब्लम्स. पहली प्रॉब्लम क्या है? बाइनरी स्ट्रिंग हुज डेसिमल इक्विवेलेंट इज डिविजिबल बाय 2. ये पहली प्रॉब्लम है, आराम से बन जाएगी. दूसरी प्रॉब्लम है बाइनरी स्ट्रिंग हुज डेसिमल इक्विवेलेंट इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ये सेकंड प्रॉब्लम है, ये भी आराम से बन जाएगी. ये भी जैसे हमने 34 बनाया. तो लेट अस मेक दिस प्रॉब्लम फर्स्ट. ओके, सबसे पहले मैं डिविजिबल बाय 2 वाला बनाता हूं. तो डिविजिबल बाय 2 वाले में देयर विल बी ए स्टार्ट. जब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ यानी रिमाइंडर मेरा जो है क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा. 2 स्टेट आएंगी. ओके, सो आई एम मेकिंग 2 स्टेट्स, एक कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 और दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग टू 1. और इसमें फाइनल स्टेट कौन सी होगी मेरी? क्योंकि मेरा क्या है, डिविजिबल बाई 2 है, यानी कि अगर मैं mod 2 लूँ तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. तो 0 के वाली जो मेरी स्टेट है ये मेरी क्या होगी? फाइनल स्टेट भी हो जाएगी. इज इट? अब मैं इसके जो है ट्रांजिशंस कंप्लीट करता हूँ. अब 0 वाली स्टेट में अगर मेरे को 0 मिलता है, ओके, तो रिमाइंडर मेरा 0 है, तो रिमाइंडर डबल होगा 0 मिलने पे, यानी कि मैं इसी जगह पर रहूंगा. इज इट? अगर मेरे को 1 है तो डबल प्लस 1, यानी कि 1 पे मैं जो है किस पे आ जाऊंगा? 1 पर. इज इट? इसी तरह से अब अगर मैं 1 पर हूं, अगर मेरे को 0 मिलता है तो इसका डबल क्या हो जाएगा? 2. अब 2 तो इसके अंदर है नहीं, तो 2 का मैं किसे डिविजिबल बाई 2 देख रहा हूं, तो mod 2 लूंगा. 2 का mod 2 क्या आएगा? 0. ओके, सो ऑन 0 आई विल बी मूविंग बैक टू द 0 स्टेट. और अगर मेरा जो है 1 मिलता है मेरे को, तो इसका डबल प्लस 1, यानी 1 का डबल 2 प्लस 1 यानी कि 3. और 3 का अगर मैं mod 2 लूं तो क्या आएगा? 1. सो ऑन 1 आई विल stay on this state. Is it clear? So this will be an FA which will accept all binary strings whose decimal equivalent is divisible by 2. Is it clear or not, class? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Now come on, second problem. Binary string whose decimal equivalent is not divisible by 3. बना लीजिए. अब मुझे डिविजिबल बाई 3 देखना है. नॉट, चाहे भले नॉट है तो वो उसी हिसाब से फाइनल स्टेट डिसाइड हो जाएगी. तो डिविजिबल बाई 3 यानी कि 3 स्टेट आएंगी. पहली स्टेट क्या है? 0 के इक्विवेलेंट, 0 रिमाइंडर के इक्विवेलेंट. दूसरी स्टेट 1 रिमाइंडर के इक्विवेलेंट. और तीसरी स्टेट 2 रिमाइंडर के इक्विवेलेंट. इज इट? इसमें से ऑब्वियस सी बात है, ये जो स्टेट है आपकी, ये स्टार्ट स्टेट होगी 0 वाली. और फाइनल स्टेट कौन सी होगी? अब ये कह रहा है नॉट डिविजिबल बाई 3, तो इसमें फाइनल स्टेट कौन सी होंगी? 1 and 2. इज इट और नॉट? सो दिस 1 वाली स्टेट और दिस 2 वाली स्टेट, क्योंकि अगर डिविजिबल बाई 3 होता तो 0 वाली स्टेट फाइनल स्टेट होती. अब डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 3 है, तो यानी कि रिमाइंडर 1 रहे तो भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा पूरी तरह से. अगर रिमाइंडर 2 रहे तो भी 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा. अगर रिमाइंडर 0 रहेगा तो 3 से पूरी तरह डिवाइड होगा. दैट्स वाई स्टेट corresponding to 1 and corresponding to 2 will be the final state. अब मुझे इसके ट्रांजिशंस कंप्लीट करने हैं बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी किए थे वैसे. 0 का डबल 0, तो 0 पर तो सेल्फ लूप आएगा. उसके बाद 1 आता है तो डबल प्लस 1 यानी 0 का डबल प्लस 1 यानी कि 1. सो ऑन 1 आई विल बी मूविंग हियर. इसी तरह से 1 का अगर 1 पे 0 आता है तो इसका डबल होगा, तो 1 का डबल क्या है? 2. तो ऑन 0 आई विल बी मूविंग टू 2. अगर 1 आता है तो डबल प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3. और 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड, 3 तो इसमें है नहीं, 0 1 और 2 रिमाइंडर हो सकते हैं. तो 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या है? पूरी तरह से जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0. सो ऑन 1 आई विल बी मूविंग बैक टू 0. इसी तरह से सेकंड वाले के लिए अगर 0 मिलता है तो 2 की जगह क्या हो जाएगा? डबल 4 को 3 से किया तो 1. Okay, so on 0 I will be moving back to 1. On 1 2 दूनी 4 और 1 5, और 5 को अगर मैं 3 से करूं तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 2. इज इट? सो 1 पर ये, तो ये भी क्लियर है. सो दिस इज द FA corresponding to the second problem when decimal equivalent of the binary string is not divisible by 3. Is it clear? दोनों अलग अलग बन गए. Is it clear? Yes, sir. Okay, now what we'll do, we'll combine these two.
वी विल कंबाइन, हमारी प्रॉब्लम क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है, सो वी विल कंबाइन दीज टू, और ये कैसे है, एंड, तो यानी कि मैं क्या करूंगा, इन दोनों से मिला करके एक एफ ए बनाऊंगा, दोनों को मिला करके, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी। अब दोनों की प्रॉपर्टी कैसे, मैं क्या करूंगा, दोनों की स्टार्ट स्टेट से शुरू करूंगा। उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है ये, और बहुत सारी जगह काम आता है। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम होती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इजी प्रॉब्लम्स हैं, उनको अलग अलग बना करके फिर उनको एक साथ कंबाइन कर सकते हैं इस मेथड से, इज इट। तो देखिए, इसकी स्टार्ट स्टेट और इसकी स्टार्ट स्टेट, दोनों की जो स्टार्ट स्टेट है वो लूंगा। इसकी स्टार्ट स्टेट क्या है, 0, इसकी स्टार्ट स्टेट क्या है, 0। अब मैं पहली प्रॉब्लम ये वाली ले रहा हूं और दूसरी प्रॉब्लम ये वाली ले रहा हूं, और इनकी स्टेट्स के जो कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, उसमें जो पहली डिजिट आएगी वो इससे आएगी, दूसरी डिजिट जो आएगी इससे आएगी। तो मेरी एक तरह से स्टार्टिंग स्टेट क्या हुई, 0, 0 इज माई स्टार्ट स्टेट, इज इट। तो इसकी स्टार्ट स्टेट ली और इसकी स्टार्ट स्टेट ली। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस 0, 0 के ट्रांजिशन देखने, 0 पे क्या होगा और 1 पे क्या होगा। अब अगर मुझे इस स्टेट का 0 पे ट्रांजिशन देखना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी जिस स्टेट से ये स्टार्ट स्टेट बनी है वो 0 पे कहां जा रहा है। ये 0 पे कहां आ रहा है, 0। इसी तरह से ये 0 पे कहां आ रहा है, ये भी 0, यानी कि दोनों ही स्टेट 0 आ रही है। तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या बना, 0, 0। सो दैट्स व्हाई ऑन 0 आई विल बी लूपिंग बैक हियर, इज इट क्लियर। इसी तरह से अब मैं देखूंगा 1, 1 पे क्या होगा। अब देखिए 0, ये मेरी स्टेट 0, 0 है, तो मैं ये स्टेट और ये स्टेट मेरे को देखनी है। 0, 1 पे कहां जा रहा है, 1। ये भी 0, 1 पे कहां जा रहा है, 1, इज इट। तो मैं कर लेता हूं 1, 1, मेरा 1 पे कहां आएगा, 1, 1, इज इट क्लियर। क्लियर है कैसे बनाया मैंने इसको, यहां तक क्लियर है कि नहीं। यस सर। अब इसी तरह से मैं बाकी सारे ट्रांजिशन कंप्लीट करते जाऊंगा। अब देखिए 0, 0 इस वाली स्टेट के स्टार्ट स्टेट के ट्रांजिशन 0 पे भी है, 1 पे भी कंप्लीट है। अब मुझे इस 1, 1 के ट्रांजिशन देखना है। अब 1, 1 के ट्रांजिशन देखना है तो कैसा है, यानी कि ये 1 और ये 1, यानी कि इसकी जो 1 है और इसकी जो 1 है, इन दोनों के ट्रांजिशन 0 और 1 पे कहां जाते हैं, दैट आई हैव टू लुक एट। ओके, इस 1 का ट्रांजिशन 0 पे कहां जा रहा है, 0, ठीक है। इस 1 का ट्रांजिशन 0 पे कहां जा रहा है, 2। तो मेरी नई स्टेट क्या बनी, 0, 2। मेरी नई स्टेट क्या बनी, 0, 2। देखिए ये वाला पहला वाला 1 0 पे गया, 0। दूसरा वाला 1 0 पे गया, 2। तो मेरी स्टेट क्या बनी, 0, 2। सो फ्रॉम दिस ऑन 0 आई विल बी मूविंग टू 0, 2, इज इट। उसके बाद 1, 1 का 1 पे क्या होगा, तो 1, 1 इस 1 का 1 पे क्या आया, 1। इस 1 का 1 पे क्या आया, 0। यानी कि नई स्टेट क्या बनी, 1, 0। इधर से 1 मिला, इधर से 0 मिला। ओके, सो 1 पर मैं देख लेता हूं, 1 पर मुझे क्या स्टेट मिली, 1, 0। अब देखिए इस 1, 1 का 0 और 1 दोनों कंप्लीट हो गए। अब 0, 2 और 1, सॉरी ये था 1, 0, इज इट। सो अब ये दो स्टेट रह गई मेरी, 0, 2 और 1, 0। अब मैं देखता हूं 0, 2, 0, 2 का 0 पे, तो इसके लिए देखना पड़ेगा 0 का 0 पे और 2 का 0 पे कहां जा रहा है, ठीक है। 0 का तो 0 पे 0 ही आ रहा है और 2 का 0 पे क्या आ रहा है, 1। तो यानी कि क्या स्टेट बनी, इधर से 0 और इधर से 1, तो क्या बनी, 0, 1। सो ऑन 0 इट इज गोइंग टू 0, 1, इज इट। उसके बाद 0, 2 का 1 पे देखना है, तो 0 का 1 पे देखना है, इधर से आया 1, और 2 का 1 पे देखना है, इधर से आया 2। यानी कि 1 पे क्या आया, इधर से देखिए 0, 2 का देखना, 0 का 1 पे 1, इज इट, और 2 का 1 पे 2, तो क्या आ गया, 1, 2। so on 1 it is moving to 1, 2, is it clear। अब ये कंप्लीट हो गया। अब मैं देखता हूं इस 0, 1 का, ठीक है। नेक्स्ट जस्ट ये 0, 1, तो 0, 1 का 0 पे, अब 0 पे देखना है पहले, तो 0 का 0 पे और 1 का 0 पे, 0 का 0 पे 0 और 1 का 0 पे 2, यानी कि 0, 2, 0, 2, यानी कि ऑन 0 it will move back to 0, 2, is it।
अब 0 1 का 1 पे देखना है, तो 0 का 1 पर क्या आया 1, और इधर से 1 का 1 पे क्या आया 0, यानी कि 1 0, यानी कि ऑन 1 यू विल बी मूविंग टू 1 0, इज इट? तो इसके कंप्लीट हो गए। अब मुझे देखना है 1 0 और 1 2 के, ठीक है। अब 1 0 का देख लेते हैं, 1 0 का 0 पे, यानी कि 1 का 0 पे तो आया 0, और इधर से 0 का 0 पे आया 0, यानी कि 1 0 का 0 पे जो जाएगा दैट विल बी 0 0, इज इट? इसी तरह से 1 0 का 1 पे, तो 1 का 1 पे 1 आया, और 0 का 1 पे 1 आया, यानी कि 1 पर इट विल बी 1 1, इज इट? इसी तरह से 1 2 के कंप्लीट कर लेते हैं। 1 का 0 पर 0, और 2 का 0 पे 1, तो यानी कि 0 1, ओके। सो ऑन 0 it is going to 0 1, it is going to 0 1, and then 1 2 का मुझे 1 पे चाहिए, तो 1 का 1 पे 1, और 2 का 1 पे 2, तो यानी कि 1 पर एक सेल्फ लूप होगा 1 2। अब आप देखिए कोई भी स्टेट ऐसी है जिसके ट्रांजिशन कंप्लीट ना हो, सभी स्टेट्स के ट्रांजिशन इसमें जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से आपका ये एफ ए कंप्लीट होगा। दिस एफ ए विल एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स विच आर डिविजिबल बाई, सॉरी अभी इसमें मेरे फाइनल स्टेट नहीं बनाई है, ठीक है। अब फाइनल स्टेट कौन सी होंगी? तो फाइनल स्टेट, चूंकि आपकी प्रॉब्लम क्या है, एंड की प्रॉब्लम है कि आपको डिविजिबल बाई 2 यानी कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो जो इसकी फाइनल स्टेट हो और साथ में इसकी भी फाइनल स्टेट हो, वो इस एफ ए के अंदर फाइनल स्टेट होगी। इसकी फाइनल स्टेट क्या है 0, इसकी फाइनल स्टेट क्या है 1, और इसकी फाइनल स्टेट क्या है 2, यानी कि जहां पे भी 0 के साथ 1 आए या 0 के साथ 2 आए, वो आपकी या जो है 1 2 आए, वो सारी स्टेट आपकी फाइनल स्टेट होंगी, इज इट? ओके, तो इसको आप देखिए 0 0 में 0 तो आ रहा है मगर 1 या 2 नहीं आ रहा, ठीक है। 1 1 में 1 आ रहा है मगर इधर से 0 नहीं आ रहा। तो आप देखिए जहां पे इधर से 0 आए और इधर से 1 या 2 आए, तो 0 0 तो हो नहीं सकता, 0 2 हो सकता है। देखिए इधर से 0 मिल रहा है आपको और इधर से आपको 2 मिल रहा है, सो दिस विल बी दी फाइनल स्टेट। इसी तरह से इधर से 0 मिल रहा है और इधर से 1 मिल रहा है, तो 0 1 विल ऑल्सो बी द फाइनल स्टेट, इज इट? 1 2 हो सकती है क्या फाइनल स्टेट? ना, फाइनल स्टेट के लिए पहली स्टेट क्या होनी चाहिए 0, तो यानी कि केवल 0 0 0 1 या 0 2, इन तीन स्टेट में से कोई फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि बाकी तीनों में क्या पहला वाला क्या है 1 है, इज इट? अब इनमें से भी सेकंड वाली क्या होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो 0 0 वाली छूट गई, तो 0 2 एंड 0 1 ये दो स्टेट मेरी क्या होंगी, फाइनल स्टेट होंगी। इज इट क्लियर? तो ये आपका जो है एफ ए है, जो सारे उन वर्ड्स को जो डिविजिबल बाई 2 हैं बट नॉट डिविजिबल बाई 3 हैं उसको एक्सेप्ट करेगा। अब एक चीज और है, देखिए अगर इस प्रॉब्लम के साथ साथ आपकी प्रॉब्लम ये आती कि बाइनरी स्ट्रिंग whose decimal equivalent is divisible by 2 और नॉट डिविजिबल बाई 3, यानी कि या तो डिविजिबल बाई 2 हो या फिर डिविजिबल बाई 3 ना हो, ठीक है। तब भी आप इसी तरह से ये दोनों प्रॉब्लम बना करके कॉम्बिनेशन इसी तरह से बनाएंगे, केवल फर्क क्या पड़ेगा, फाइनल स्टेट बदल जाएंगे। क्योंकि यहाँ एंड था तो आपने फाइनल स्टेट में एंड देखा था, अगर यहाँ और होता तो आप फाइनल स्टेट में और देखते, अगर और होता तो यानी कि कहीं पहला वाला या तो 0 हो वो सारी स्टेट फाइनल स्टेट होंगी, या दूसरा वाला 1 और 2 हो वो सारी स्टेट फाइनल स्टेट होंगी। तो इससे क्या होता है 0 0 भी फाइनल स्टेट होती क्योंकि इसमें 0 आ गया पहला वाला, ये 0 2 भी फाइनल स्टेट होती क्योंकि इसमें पहला वाला 0 आ गया, 0 1 भी फाइनल स्टेट होती क्योंकि इसमें पहला वाला 0 आ गया। इसके बाद ये 3 फाइनल स्टेट होती, इसके बाद 1 1 में देखिए चूंकि सेकंड वाला 1 आ गया तो ये फाइनल स्टेट है। इसी तरह से 1 2 में ये सेकंड वाला 2 आ गया तो ये फाइनल स्टेट है। केवल एक नॉन फाइनल स्टेट कौन सी रह जाती, 1 0 वाली। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, इज इट? तो इसी तरह से यानी कि अगर दो प्रॉब्लम आपके पास मिल रही है, एक प्रॉब्लम x है और एक प्रॉब्लम y है, अगर आपको उसका एंड दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, इसी तरह से x का अलग से एफ ए बनाना है, y का अलग से एफ ए बनाना है, एफ ए 1 एफ ए 2। फिर जो मेथड मैंने आपको बताया है, इसकी मेथड से क्या करना है, आपने इन दोनों एफ ए को कंबाइन कर देना है, और कंबाइन करने के बाद इस कंबाइन एफ ए में
डिसाइड करनी है कि फाइनल स्टेट कौन सी है, डिसाइड फाइनल स्टेट्स। और डिसाइड कैसे करेंगे, कंडीशन पे, अगर एंड है तो यानी कि जो इसकी भी फाइनल स्टेट हो और इसकी भी फाइनल स्टेट, दोनों की फाइनल स्टेट आ रही हो जिस स्टेट के अंदर, वो स्टेट फाइनल स्टेट होगी। अगर यही और हो जाए तो या तो इसकी फाइनल स्टेट आ रही हो या इसकी फाइनल स्टेट आ रही हो, वो सारी की सारी स्टेट्स आपकी क्या होंगी, फाइनल स्टेट होंगी। या मान लीजिए x माइनस वाई करके सेट के फॉर्म में आपको प्रॉब्लम दे दी जाए, तो यानी कि इसकी फाइनल स्टेट तो हो मगर y की नॉन फाइनल स्टेट हो, तो आप इस माइनस को बना सकते हैं। इसी तरह से आप जितने भी आपके रिलेशंस हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग केवल एफ ए यही बनेगा, केवल चेंज क्या होगा, फाइनल स्टेट चेंज होंगी। सो दैट्स व्हाई दिस टेक्निक इज वेरी वेरी यूजफुल इन मेनी प्रॉब्लम्स। अब ये आपके ऊपर है कि आप सब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके इसको जो है कहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? यस सर। ओके, इसके साथ साथ इस प्रॉब्लम में मैं थोड़ा सा और टाइम दूंगा। इसके साथ साथ मैं जो है एक और मेथड इसका डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जरूरी नहीं कि आप ऐसे कॉम्बिनेशन से ही करिए, ये मैंने जानबूझ करके इस मेथड से आपको इसलिए बताया सो दैट यू मे लर्न दिस मेथड एज वेल। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो इस मेथड के बगैर भी सॉल्व हो सकती है, बट देयर विल बी सर्टेन प्रॉब्लम्स जो कि इसी तरह के कॉम्बिनेशन मेथड से ही सॉल्व होंगी। सो वहां पे आपको ये मेथड काम आएगा। ये प्रॉब्लम डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकती है। डायरेक्टली कैसे सॉल्व हो सकती है, आप देखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, whose decimal equivalent is divisible by 2, यानी पहला है divisible by 2, दूसरा क्या, but not divisible by 3। अब अगर हम 3 और 2 का मिला करके जो है एलसीएम ले लें और इससे करें तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 6। तो हम एक तरह से क्या करें, 6 बजाय 2 और 3 के अलग अलग मॉड लेने के हम 6 का मॉड ले लें। हम क्या ले लें, 6 का मॉड ले लें। अब अगर 6 का मॉड लेंगे तो कितनी स्टेट बनेंगी, 6 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट बनेंगी, एक कॉरस्पॉन्डिंग टू 0, एक कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से 6 स्टेट बनेंगी और उन 6 स्टेट के फिर आप ट्रांजिशन कंप्लीट कर लीजिए। आप देखिए यहां भी अगर आप ध्यान से देखें आपकी 6 ही स्टेट बनी है, 1 2 3 4 5 और 6। और आप वैसे भी देख लीजिए जब भी आप कंबाइन करेंगे दो एफएज को, तो पहले एफए में जितनी स्टेट्स हैं और दूसरे एफए में जितनी स्टेट्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट स्टेट्स इस एफए के अंदर आ सकती हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों कह रहा हूं मैं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दोनों की स्टेट्स के कॉम्बिनेशन से हम इस एफए की स्टेट्स बना रहे हैं। तो मैक्सिमम कितनी स्टेट्स होंगी, जितनी इसकी स्टेट्स हैं मल्टीप्लाइड बाई जितनी इसकी स्टेट्स हैं। इज इट? अब इसमें से ऐसा हो सकता है इन सारी स्टेट्स में से कुछ स्टेट हो सकता है रीचेबल ना हो, तो वो हो सकता है यहाँ अपीयर ना करें। तो इसीलिए जितना मैक्सिमम इनका मल्टीप्लीकेशन है मैक्सिमम उतनी स्टेट होंगी या उससे कम स्टेट इस एफए के अंदर आएंगी, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम 0 0 जो हमारा जो स्टार्ट स्टेट है दोनों की उनसे मिला करके इसकी स्टार्ट स्टेट बनाई और फिर हम स्टार्ट स्टेट से 0 पे कहाँ पहुंचे, 1 पे कहाँ पहुंचे, ये सारे के सारे रीचेबिलिटी एक तरह से देख रहे हैं। जहां जहां हम पहुंच पा रहे हैं उन स्टेट्स को हम यहाँ आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं। तो यहाँ जो जो स्टेट्स रीचेबल होंगी, जो जो यूजफुल होंगी, वो सारी स्टेट्स यहाँ अपीयर कर जाएंगी। और मैक्सिमम कितनी स्टेट अपीयर करेंगी, जितना इन दोनों एफएज की स्टेट्स का मल्टीप्लिकेशन है मैक्सिमम उतनी स्टेट आएंगी। बाई चांस इस पर्टिकुलर एफए में 6 की 6 स्टेट यूज हो रही हैं, इसलिए 6 की 6 स्टेट आई। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था इन 6 में से केवल 4 ही स्टेट यहाँ अपीयर करती अगर प्रॉब्लम उस तरह की होती। किसी और प्रॉब्लम में कभी जो है देखेंगे तो इस तरह की सिचुएशन भी आपकी आ सकती है। अब मैं इस पर डिस्कस कर रहा था कि आप इसे डायरेक्टली भी बना सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 के कोरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर लेके। सबसे पहले मैं एक काम कहता हूं कि 0 वाला जो है इसको आप रिमाइंडर 0 मान लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको ग्रीन कलर से लिख देता हूं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें वही स्टेट्स। ओके, मैं कह देता हूं इसको 0 मान लीजिए। 0 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए डिविजिबल बाई 2 है तो 0, डिविजिबल बाई 3 है तो 0। यानी कि अगर 6 से डिविजिबल होगा तो 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज मॉड 0। अब 1 कब आएगा, 1 अगर 1 है मेरा तो ये ना तो 2 से डिविजिबल होगा ना 3 से डिविजिबल होगा। यानी 2 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 1 बनेगा और 3 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 1 बनेगा। यानी कि 1 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो स्टेट होगी वो इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग, तो ये 1 1 वाली जो स्टेट है ये मेरी रिमाइंडर 1 वाली स्टेट है, ठीक है। इसके बाद अब 2 वाली देखता हूं, 2 वाली स्टेट कौन सी होगी।
2 वाली स्टेट क्या होगी, अगर 2 को आप 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, और अगर 3 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, यानी कि इधर से मुझे क्या मिला 0, इधर से मुझे क्या मिला 2, तो मेरी 0 2 वाली स्टेट होगी, ये मेरी 2 के कोरस्पॉन्डिंग, जस्ट 1 मिनट, ओके। तो 0 2 वाली जो मेरी स्टेट होगी ये कौन सी होगी, 2 के कोरस्पॉन्डिंग, रिमाइंडर 2 के, जस्ट रेड आ गया, ओके ग्रीन कर लेते हैं। एक मिनट, कलर क्या है, ओके। तो ये मेरी 2 के कोरस्पॉन्डिंग वाली स्टेट हो गई, ठीक है। अब अगर मैं 3 को देखूं, तो 3 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, यानी 3 जो होगा 1 0 के कोरस्पॉन्डिंग वाली स्टेट होगी। तो जहां भी 1 0 हो रहा है ये रिमाइंडर 3 के कोरस्पॉन्डिंग वाली स्टेट होगी। इसे 4 को अगर आप देखें तो 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, और 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। सो 0 1 वाली जो स्टेट होगी ये 4 के कोरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से 5 वाली कौन सी होगी, अगर इसको आप 2 से डिवाइड करें तो 1, और अगर 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो 1 2 वाली जो स्टेट है ये 5 के कोरस्पॉन्डिंग वाली मेरी स्टेट है। अब अगर इस तरह से मेरी ये रिमाइंडर वाली स्टेट है, तो अब मैं इसको देख लेता हूँ वापस इसी तरह से बनाइए, देखिए 0 तो डबल होगा 0 ही रहेगा, ठीक है। 1 डबल प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 1, तो इस पे आ गया। देखिए ये ट्रांजिशन भी मेरा ठीक है, ये ट्रांजिशन भी मेरा ठीक है, इज इट। उसके बाद आप जो है क्या करते, 1 वाले के देखते, 1 वाला 0 पे क्या होता है डबल, तो 0 पे देखिए कहाँ पहुंच गया 2 पे, और 1 पे क्या होता है डबल प्लस 1, यानी कि इसका डबल प्लस 1 यानी कि कहाँ पे आता 3 पे, देखिए 1 जो है आपको किस पे आ रहा 3 पे, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। उसके बाद आप सपोज 3 वाले की ट्रांजिशन देखते हैं, ठीक है। 3 वाले की ट्रांजिशन देखते तो देखिए 3 वाला 0 पे क्या हो जाएगा डबल 6, और 6 से अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा 0, देखिए 0 पे कहाँ जा रहा है, ये 0 वाली स्टेट पे जा रहा है, तो ये सही हो गया। और 1 पे हो तो 7, और 7 को आप 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 1, देखिए ये वाला ट्रांजिशन भी सही हो गया। इसी तरह से आप देखिए 2 वाला देखिए आप 0 पे क्या होगा डबल, तो देखिए 0 पे कहाँ पहुंच रहा है 4 पे पहुंच रहा है। 1 अगर है तो 1 पे कहाँ पहुंच रहा है डबल प्लस 1 यानी कि 5 पर, तो देखिए 5 पर आ गया, इज इट। तो ये ट्रांजिशन भी ठीक हो गया। अब इसी तरह 4 का ट्रांजिशन देखिए, 4 का 0 पे क्या होगा डबल 8 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, देखिए 2 वाले पे जा रहा है, सही हो गया। 1 है तो डबल प्लस 1 यानी कि 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, देखिए ये वाला भी सही होगा, देखिए 3 पर जा रहा है, इज इट। इसी तरह से 5 वाले को देखिए, अगर 0 है तो डबल यानी कि 10, और 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 पर पहुंच गया। और अगर जो है 1 आएगा तो डबल प्लस 1 यानी कि 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 5, तो दैट्स वाई देयर इज ए सेल्फ लूप। तो आप देखिए सारे ट्रांजिशन वही आए, तो मैं इस तरह से भी बना सकता था। अब इसमें फिर फाइनल स्टेट कैसे डिसाइड करता, देखिए वो कह रहे हैं डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 3, तो डिविजिबल बाई 2 वाले कौन से हैं, देखिए 0 वाला 2 से डिविजिबल है, 2 वाला 2 से डिविजिबल है, और 4 वाला 2 से डिविजिबल है। ना तो 1 ना 3 ना 5, इनमें से कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी पॉसिबल फाइनल स्टेट्स क्या होती, या तो ये होती, ये होती, और ये होती। अब इस साथ में दूसरी प्रॉब्लम भी है, नॉट डिविजिबल बाई 3। अब इसमें से देखिए ये 0 जो है 3 से भी तो डिविजिबल है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे नॉट डिविजिबल बाई 3 चाहिए, तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए 2 क्या 3 से डिविजिबल है ना, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो दैट्स वाई दिस विल बी द फाइनल स्टेट। 4 क्या 3 से डिविजिबल ना, डिविजिबल नहीं है, तो दैट्स वाई दिस विल आल्सो बी द फाइनल स्टेट। तो इस तरह से वापस ये डिसाइड हो जाता कि हमारी ये 2 स्टेट क्या होंगी, फाइनल स्टेट होंगी। सो आप देखिए बिना इस कॉम्बिनेशन के डायरेक्ट भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। तो चूंकि ये मैथमेटिक्स इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पॉसिबल है कि आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के 2 और 3 के जहां भी मॉड की प्रॉब्लम आएगी उनके कॉम्बिनेशन आएंगे, तो आप उनका जो है जो एलसीएम है वो लेकर के दोनों को मल्टीप्लाई करके जो बड़ा नंबर बनेगा उस नंबर का मॉड लेकर के उसके हिसाब से आप अपनी प्रॉब्लम को डिवाइस कर लीजिए, और उसी के हिसाब से आप फाइनल स्टेट डिसाइड कर लीजिए। आई होप इट इज क्लियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
Yes, sir. Yes, sir. So a lot of discussion we have done in this question. So direct method I have discussed with you, and I have discussed with you this combination method as well. Okay. So now can we move further? Yes, sir. sir. Okay. So 35 हो गया, इसके बाद 36, 37, 38, 39 कोई प्रॉब्लम? 38, sir. 38. 38 से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है. 37, 38 ओके. String containing exactly 2 A's and more than 2 B's. अब आप देखिए, आपने इससे पहले 37 प्रॉब्लम सॉल्व की है. ठीक है. 37 कैसे सॉल्व की है? 37, just 1 minute. Question number 38. It is just like 37. प्रॉब्लम पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि 37 जैसी है कि नहीं? Yes, sir. ओके. उसके बाद भी ये सॉल्व नहीं हुई और 37 सॉल्व होगी. 37 के लिए आपने क्या किया था? देखिए, वहां गया था एटलीस्ट 1 ए और एग्जैक्टली 2 बीज. तो आपने क्या किया, इसके जितने भी सक्सेस पाथ हो सकते थे वो बना लिए आपने बनाया होगा ए बी बी. 2 बी एग्जैक्टली चाहिए, एटलीस्ट एक ए चाहिए. तो एक ए और 2 बी के साथ 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो ए बी बी, या बी ए बी, या बी बी ए. इज इट? आपने तीनों सक्सेस पाथ बनाए होंगे और ट्रांजिशंस कंप्लीट कर लिए होंगे. इज इट? यही तो किया है, यही किया है ना? Yes, sir. ओके. Yes, तो sir. सेम चीज आपको 38 में करनी है. बट 38 में अंतर क्या है कि आपके जो सक्सेस पाथ हैं उनका नंबर बड़ा होगा. अब देखिए, आपको ये क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 2 एज यानी 2 ए चाहिए, और मोर देन 2 बीज यानी कि 2 बी तो चाहिए. और जहां कहीं भी, अब जैसे आपने इस वाली प्रॉब्लम में जहां कहीं भी आपको एज आ रहे होंगे, एज पे आपने ज्यादातर सेल्फ लूप लिए होंगे. इज इट? वो क्यों लिए हैं? क्योंकि एज अलाउड है, लेकिन बी आपने एग्जैक्टली काउंट किए. जहां भी तीसरा बी आया वहां आप उसको फेल स्टेट पे ले गए. सेम चीज यहां करनी है कि 2 ए, आपको एग्जैक्टली 2 ए चाहिए, तो 2 ए तो आप कर रहे हैं, जहां भी तीसरा ए आएगा वहां फेल स्टेट पे ले जाएंगे. और 2 बी आप उसमें कर रहे हैं, अगर कहीं पे भी बी इसके एडिशनल आता है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? सेल्फ लूप यूज करेंगे. केवल फर्क क्या है कि इस 38 में आपको सक्सेस पार्ट ढूंढने हैं कौन कौन से हैं. अब 2 ए और 2 बी के साथ सक्सेस पाथ कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, मैं लिख रहा हूं ए बी बी, ये पहला सक्सेस पाथ हो सकता है. अब देखिए, मैं क्या करूं, सिस्टमेटिकली पाथ जनरेट कर रहा हूं. Sir, more than sir. मोर देन 2 B's. B's. मोर देन 2 बीज है ना. तो वहां भी तो आप देखिए, पहले 37 में क्या था? एटलीस्ट 1 ए, यानी कि मोर देन 1 ए था ना. समझ आया? 37 में क्या था? एटलीस्ट 1 ए, यानी एक ए तो था ही, और एक से ज्यादा ए भी हो सकते थे. मोर देन 1 ए था. आप लैंग्वेज बदल लीजिए, वहां भी मैं क्या लिखता है, विद मोर देन 1 ए एंड एग्जैक्टली 2 बीज, या विद एग्जैक्टली 2 बीज एंड मोर देन 1 एज. मैं ये लिखता, तभी तो प्रॉब्लम वही रहती. इज इट और नॉट? क्लास, प्रॉब्लम वही रहती है, कुछ बदलती? एक बार 37 पढ़िए. स्ट्रिंग विद एटलीस्ट 1 ए. मैं एक बार लिख देता हूं, चलिए. एटलीस्ट 1 ए एंड एग्जैक्टली 2 बीज. 2 बीज. अब मैं इसको बदल देता हूं, मैं लिखता हूं मोर देन 1 ए एंड एग्जैक्टली 2 बीज. ठीक है. और अब यहां 38 में मेरी प्रॉब्लम क्या है? 38 में मेरी प्रॉब्लम है एग्जैक्टली 2 एज एंड मोर देन 2 बीज. अब देखिए, दोनों सिमिलर स्टेटमेंट है कि नहीं है? जस्ट टेल मी.
सर मोर देन 2 बीस का मतलब 2 बी से ज्यादा होने चाहिए, 2 बी हाँ। एक्सेप्ट क्यों होंगे? एक मिनट, ओके ओके, एंड अच्छा मोर देन 2 बीज, ओके 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 ओके। हाँ तो चलिए उसी हिसाब से रिफॉर्मेट कर लेते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया शायद उसमें, मैंने 2 एंड मोर बीज समझ लिया, ठीक है। उसमें वहाँ एटलीस्ट 1 ए था, तो आप वहाँ क्या कर सकते थे, मोर देन 0 एज कर सकते थे, ओके। तो कम से कम 2, तो यहाँ आपके 3 बीज कम से कम होने चाहिए, इसका मतलब इज इट, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम पाथ जो है फॉर्म कर लेंगे। तो आप देखिए मैं सिस्टमेटिकली पाथ्स फॉर्म कर रहा हूँ, बहुत सारे पाथ बनेंगे इसके अंदर। सो डबल ए, अब देखिए ए मैंने 1 और 2 पोजीशन पे रखा, अगली बार मैंने क्या किया, ए बी बी, अब मैंने क्या किया, ए को नेक्स्ट पोजीशन पे ले गया, उसके बाद ए बी ए बी, ए को और नेक्स्ट पोजीशन पे ले गया, ए बी ए, ये सारे पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है। अब एज को मैंने किया, अब इसके बाद जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ और फर्स्ट फिफ्थ इन पोजीशंस पे रखा। अब मैं इसी तरह से क्या करूंगा, सेकंड से स्टार्ट करूंगा, यानी कि पहला मेरा क्या होगा, बी, सेकंड पे ए, थर्ड पे सेकंड थर्ड, इसके बाद बी सेकंड फोर्थ, इज इट, इसके बाद बी सेकंड फिफ्थ, सेकंड फिफ्थ, ये कॉम्बिनेशन बन गए, ये कॉम्बिनेशन बन गए। इसी तरह से अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड से स्टार्ट करता हूँ, बी बी, ये फिक्स रहेगा, थर्ड एंड फोर्थ, इज इट, देन थर्ड एंड फिफ्थ, ये कॉम्बिनेशन बन गए। उसके बाद बी फोर्थ एंड फिफ्थ, केवल ये, इज इट। तो इस तरह से आप देखिए 4 कॉम्बिनेशन यहाँ बने, 3 यहाँ बने, 2 यहाँ बने, 1 यहाँ बने, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, टोटल 10 सक्सेस पाथ हो गए। अब आप ये 10 के 10 सक्सेस पाथ बनाइए, बहुत सारी बहुत बड़ी स्टेट्स बनेंगी इससे। और ये केवल क्या है, एक टीडीएस प्रॉब्लम है, केवल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दी गई एक बड़ी टीडीएस प्रॉब्लम बनेगी। तो ये केवल प्रैक्टिस के लिए है, अमूमन एग्जाम में इतनी टीडीएस है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी नॉर्मली नहीं आती, नॉर्मली कॉन्सेप्चुअल जो है प्रॉब्लम आती है तो छोटी आती है, बट इसको करने से आपका क्या कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टोटल 10 सक्सेस पाथ होंगे, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, बिल्कुल बनेगा वैसे जैसे यहाँ आपने 3 पाथ बना के कंप्लीट किया था, वैसे यहाँ पे आप 10 पाथ बनाइए, थोड़ा सा बड़ा सा पेपर ले लीजिएगा, 10 पाथ बनाइए और फिर सारे कॉम्बिनेशंस कंप्लीट करिए। सिस्टमेटिकली अगर आप कंप्लीट करेंगे तो 100% करेक्ट आपका सॉल्यूशन बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट? कॉन्सेप्ट वही है, केवल स्केल ऑफ प्रॉब्लम जो है वो आपका बड़ा हो गया, इज इट। तो अगर 37 हो गया तो 38 होना चाहिए, बस केवल वहां क्या थे, चूंकि आपको नंबर ऑफ सक्सेस पाथ्स कम थे, आपने वो कॉम्बिनेशन आसानी से बना लिए, 3 कॉम्बिनेशन थे आसानी से बना लिए। यहाँ क्या थे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ज्यादा थे तो आपको बनाने में थोड़ा दिक्कत आई। बट अगेन ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, इन कॉम्बिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग आप अपने पाथ्स बनाएंगे और उन पाथ्स को फिर कंप्लीट करेंगे। सो इट विल बी ए बिट कॉम्प्लिकेटेड वन, बट जो है ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकता, बन सकता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, नाउ 39 40, कोई प्रॉब्लम? 39 40 में होगा कोई? सर यस सर। कैसे किया है? नहीं सर 39 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है ना। अब एक चीज और देखिए, अब 39 को आप एक बार दोबारा से रिव्यू करिए। इसमें क्या कह रहा है, NaW mod 3 इज ग्रेटर देन NbW mod 3। इसको अभी जो हमने 2 अलग अलग बना के उनका कॉम्बिनेशन बनाया, क्या उस तरह से बना सकते हैं? देखिए 2 प्रॉब्लम के बीच में रिलेशनशिप दे रहा है। मैं क्या करता हूं, NaW mod 3 के लिए कि नंबर ऑफ एज इन W mod 3, अब मुझे पता नहीं कितने होंगे, बट फिलहाल मैं इसके लिए एक एफ बना लेता हूँ, फाइनल स्टेट नहीं बनाता इसमें, ठीक है। इसी तरह से NbW mod 3, इसके लिए एक बना लेता हूँ, फाइनल स्टेट नहीं बनाता। फिर इन दोनों को मैं कंबाइन कर लेता हूँ, इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, कंबाइन कर लेता हूँ।
और कंबाइन करके जो भी मेरा एफ ए बना फिर उसमें डिसाइड कर लूंगा कि मेरी फाइनल स्टेट कौन कौन सी है। अब देखिए जो मुझे पहले वाला एफ ए है उससे जो मिल रही होंगी 0 1 2 मिल रही होंगी, ठीक है, दूसरे वाले से भी 0 1 2 मिल रही होंगी। अब जब मैं इनको कंबाइन करके बनाऊंगा 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 ये सारी स्टेट्स बनेंगी, इज इट। अब इन स्टेट्स में से मुझे क्या चाहिए कि जो पहले वाले की जो मॉड वैल्यू है, रिमाइंडर वैल्यू वो बड़ी हो, दूसरे वाले की छोटी हो। तो अब इन सब में मैं देख लूंगा जिसमें भी पहली डिजिट बड़ी है और दूसरी डिजिट जो है छोटी है, वो सारी की सारी स्टेट्स क्या होंगी, मेरी फाइनल स्टेट्स होंगी। कुछ आइडिया लगा? चलिए इसको बना लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 39। अब अगेन मैं इसको कंबाइन ना करके मैं इसको डायरेक्ट ही बना देता हूं, जैसे हमने पिछले वाले में भी डायरेक्ट किया था। अब आप देखिए पहले में मेरे 3 रिमाइंडर हो सकते हैं, 0 1 और 2 ए के लिए। फॉर ए रिमाइंडर्स विल बी रिमाइंडर्स आर 0 1 एंड 2। इसी तरह से फॉर बी ऑल्सो रिमाइंडर विल बी 0 1 एंड 2। तो अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है तो मेरे क्या बनेंगे रिमाइंडर्स, मेरे बनेंगे 0 0, इनके कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, 0 0 0 1 0 2, यानी कि इससे मैंने 0 लिया, इससे एक बार 0 लिया, एक बार 1 लिया, एक बार 2 लिया। उसके बाद इससे अब मैं क्या करता हूँ, 1 ले लेता हूँ, तो 1 0 1 1 और 1 2। इसी तरह से 2 0 2 1 और 2 2। तो टोटल 9 स्टेट बनेंगी मेरी। आप देखिए इसमें मैं रिमाइंडर के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट बनाता ना, तो 3 स्टेट बनती, 0 1 और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसी 3 स्टेट इस वाले में बनती। अब जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो कितनी स्टेट बनेगी, 9 स्टेट बनेगी। तो अब बजाय मैं वैसे कंबाइन करने के मैं सीधे 9 स्टेट बना देता हूँ, इज इट। तो बना लीजिए 0 0 ये एक स्टेट, ये 0 1 ये दूसरी स्टेट, 0 2 तीसरी स्टेट, उसके बाद 1 0 चौथी, 1 1 ये पांचवी, 1 2 छठी, उसके बाद ये 2 0 2 1 एंड 2 2। ये मेरी 9 स्टेट बन गई। आई मीन 9 स्टेट में से मेरी स्टार्ट स्टेट कौन सी होगी? देखिए जब मैंने स्ट्रिंग से कुछ भी रीड नहीं करा, ना ए रीड किया ना बी रीड किया, नंबर ऑफ एज भी 0 है, नंबर ऑफ बीज भी 0 है। तो नंबर ऑफ एज का मॉड 3 लूंगा तो वो भी 0 आएगा रिमाइंडर, नंबर ऑफ बीज का मॉड 3 लूंगा वो भी 0 आएगा रिमाइंडर। सो ऑब्वियस सी बात है स्टार्ट स्टेट तो यही होने वाली, 0 0, इज इट। फाइनल स्टेट की अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी पहले केवल कंप्लीट कर लेते हैं। अब 0 0 है। अब अगर मैं इस स्टार्ट स्टेट में एक ए रीड करता हूं, तो नंबर ऑफ, सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूं जो मेरा पहला वाला डिजिट है ए के लिए है और दूसरा वाला डिजिट जो है वो बी के लिए है। ये है फर्स्ट डिजिट और ये है सेकंड डिजिट, इज इट। तो ये 0 0 है शुरुआत में। अब जब मैं एक ए रीड करता हूं तो नंबर ऑफ एज अभी तक 0 थे, अब क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो ए वाले का रिमाइंडर क्या आएगा, 1। लेकिन बी तो वही है, बी तो अभी भी 0 है, तो बी वाले का रिमाइंडर क्या आएगा, वही 0 ही आएगा। तो कौन सी स्टेट बनेगी मेरी, 1 0। सो ऑन ए आई विल बी मूविंग टू 1 0, इज इट। सिमिलरली अब 1 0 में हूं, यानी कि नंबर ऑफ एज क्या है, 1 है, एक ए और रीड करता हूं तो नंबर ऑफ एज क्या हो जाएंगे, 2। तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, ए वाला 2 आएगा, बी वाला तो वही 0 रहेगा क्योंकि बी तो मैंने रीड ही नहीं किया, इज इट। इसी तरह से अब इस 2 वाले पर हूं और एक और ए रीड करता हूं तो मेरे नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 3। और 3 को मैं रिमाइंडर अगर लूंगा तो क्या आएगा, 0, इज इट। सो नेक्स्ट ए मेरे को कहां ले जा रहा है, 0 0 पे ले जा रहा है, तो नंबर ऑफ बीज तो 0 ही थे, इज इट। इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट आप देखिए आपका इधर भी बनेगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एज 0 है, नंबर ऑफ एज 1 है, नंबर ऑफ एज 2 है, इज इट। ऐसे ही बना लीजिए, यहाँ ए पर इधर आएगा, ए पर इधर आएगा और ए पे वापस 0 पे चला जाएगा, इज इट। एक मिनट इसको वहां लिख करके थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा वरना।
जस्ट इससे इधर क्यों नहीं आ रहा भाई? चलिए कोई बात नहीं, ऐसी कर लेते हैं। ये इस जगह पे आ गया, इसी तरह से यहाँ कर लीजिए। पहला ये आपको यहाँ ले जाएगा, फिर 0 से 1 पे आएंगे, फिर 1 से 2 पर आएंगे, 2 से फिर 0 पे चले जाएंगे। इज इट ओके? अब आप देखिए बी पे देखते हैं। अब ये सेकंड वाले डिजिट बी के लिए है। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ से आपने एक बी रीड किया तो देखिए नंबर ऑफ ए भी 0, नंबर ऑफ बी भी 0, तो एक बी रीड करते ही नंबर ऑफ बीज आपके 1 हो गए, दैट्स वाई 0 1 पे आ गया। तो आप देखिए रिमाइंडर 1 होगा। अगला बी आपको कहाँ ले जाएगा? 0 2 पे ले जाएगा, और उसके बाद अगला भी आपको कहाँ ले जाएगा? वापस इसी जगह पे ले जाएगा। इज इट? इसी तरह से आप बाकी कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ देखिए ए नंबर ऑफ ए तो 1 1 और 1 है, वैसे ही वैसे ही रहेंगे, केवल 20 पे चेंज हो रहा है। ओके, सो पहला भी आपको कहाँ ले जाएगा? 1 1 पे। अगला भी आपको कहाँ पे ले जाएगा? 1 2 पे। और उससे अगला भी आपको क्या है? वापस ले आएगा 1 0 पे। इज इट? इसी तरह से पहला भी, अगला भी, और उससे अगला भी। आप देखिए सबके सारे ट्रांजिशन कंप्लीट हो गए। तो ये आपका एफ ए देखिए कंप्लीट हो गया। अब आप चाहे इसे इस वाले एफ ए को अलग, इस वाले एफ ए को अलग बना के उनको कंबाइन करते तब भी यही आता। हमने ये डायरेक्ट कर लिया। इज इट? तो आप जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप वैसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें फाइनल स्टेट कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है नंबर ऑफ एज W mod 3 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बीज W mod 3। यानी कि फर्स्ट डिजिट मेरे किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर ऑफ एज मॉड 3 को। दूसरी डिजिट मेरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर ऑफ बीज मॉड 3 को। तो जहां भी पहली डिजिट दूसरी डिजिट से ज्यादा हो वो सारी सारी स्टेट क्या होंगी? फाइनल स्टेट। ऐसी कौन कौन सी स्टेट है? देखिए 1 0 इट इज द फाइनल स्टेट। तो इसमें पहली डिजिट दूसरे से बड़ी है। 2 0 इट विल बी द फाइनल स्टेट। 0 0 विल नॉट बी द फाइनल स्टेट क्योंकि दोनों बराबर है। इज इट? इसी तरह से 2 1 पहली डिजिट दूसरे से बड़ी है, तो इट विल बी द फाइनल स्टेट। 1 1 बराबर है, 0 1 पहली छोटी है, ठीक है, या 0 2 पहली छोटी है, 1 2 पहली छोटी है, 2 2 दोनों बराबर है, तो बाकी स्टेट फाइनल स्टेट नहीं होंगे। तो दीज 3 स्टेट्स विल बी द फाइनल स्टेट। इज इट ओके क्लास? यस सर। ओके, अब इसी तरह से 40 है। बिल्कुल 40 में क्या है? NaW माइनस NBW mod 3। ओके, सो बेसिकली जो ये है NaW माइनस NBW mod 3, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। यहाँ शायद ब्रैकेट लगे हुए होंगे या मुझे पता नहीं मॉड लगे हुए हैं, सॉफ्ट कॉपी में आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है इसकी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि अगर नंबर ऑफ एज कम हुए और नंबर ऑफ बीज ज़्यादा हुए तो आपका नंबर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का मॉड आप नहीं ले सकते हैं। इज इट? सो दैट्स वाई अगर नहीं लगा हुआ है तो आप इस पर एब्सोल्यूट वैल्यू लगा लीजिएगा। ठीक है, NA नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज का डिफरेंस मेरे को लेना। सो इट विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव नंबर, इट विल बी ग्रेटर देन 0, 0 और ग्रेटर देन 0। इज इट इक्वल? इज इट ओके? क्लियर हुआ? नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज का डिफरेंस लेना है, तो वी हैव टू टेक पॉजिटिव डिफरेंस। तो अगर वहाँ नहीं लगा हुआ है तो आप एब्सोल्यूट का साइन लगा लीजिएगा। ये जो लगाते हैं ना, जैसे यहाँ कहीं लिखते हैं कि W अगर स्ट्रिंग है तो ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ इट। और अगर ये W स्ट्रिंग नहीं है, इफ इट इज अ नंबर, तो अगर ये नेगेटिव नंबर है तो भी हम क्या कहते हैं? इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी हम यही साइन यूज करते हैं। इज इट? तो आप यहाँ चूंकि NaW इट इज अ नंबर, NBW इट इज अ नंबर, इनका डिफरेंस भी क्या होगा? इट विल बी अ नंबर। ओके, अगर नंबर ऑफ एज ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ बीज कम होंगे तो पॉजिटिव ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, लेकिन अगर नंबर ऑफ एज कम हुए और नंबर ऑफ बीज ज्यादा हुए तो नेगेटिव आएगा।
So if it comes negative, then you have to take its positive value. Okay, so absolute value you have to take, and then its mod 3 is greater than 0. Okay, so इसमें जब आप चेक करेंगे तो आप देखिए इसमें एग्जैक्टली यही FA बनेगा जो हमने बनाया है, सेम FA बनेगा, बस फर्क क्या होगा, इस डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके फाइनल स्टेट्स में, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके फाइनल स्टेट होंगे। इसको आप चेक कर सकते हैं, इसको एक बार चेक कर लीजिए, कॉन्सेप्ट सेम है। इसके बाद नेक्स्ट 41, 42, 43, 44, एनी प्रॉब्लम? क्लास लास्ट 3 प्रॉब्लम्स हैं, इज देयर एनी प्रॉब्लम? सर क्वेश्चंस एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए चारों। ओके, ये 41 को ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 सेज कंस्ट्रक्ट ट्रांजिशन सिस्टम, या FA आप कह लीजिए, इसमें ट्रांजिशन सिस्टम लिखा है, विच कैन एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू A B एंड देन इन्होंने डॉट डॉट लगा दिए। आप इसे अज्यूम कर लीजिए इट इज Z अप टू Z, क्योंकि अल्फाबेट सिंबल्स दिए हैं तो अल्फाबेट सिंबल्स आपके कहाँ तक जाएंगे, Z तक जाएंगे। सो बेसिकली योर अल्फाबेट इज कंटेनिंग 26 symbols. Is it? It contains 26 symbols containing either rat, cat or rat. यानी पहला लेटर अगर आप देखें तो या तो C होगा या R होगा, दूसरा लेटर A होगा और तीसरा लेटर T होगा। तो सिंपल बड़े आराम से बन जाएगा ये, माइनस पहला C, दूसरा A और तीसरा T, देन इट इज दी सक्सेस। या अगर पहला लेटर R हो तब भी सेम सक्सेस होगा। तो पहला लेटर C या R दोनों में से कोई भी हो सकता है, दूसरा A हो और तीसरा T हो। इसके बाद ये एक फेल स्टेट बना लीजिए, इसमें आप कर लीजिए A डॉट डॉट Z, यानी कि A से Z तक के सारे वो आएंगे। अब अगर C और R के अलावा कुछ भी आता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं A डॉट डॉट Z एक्सेप्ट C, R। अगर कुछ भी आया तो कहाँ आएगा, फेल स्टेट पे हो जाएगा। C या R में से कुछ है तो आप सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे ये A है, तो अगर यहाँ A डॉट डॉट Z एक्सेप्ट EX CE कुछ लिखेंगे वो एक्सेप्ट A, या आप सीधे B डॉट डॉट Z लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ A तो सबसे पहला ही लेटर है, ठीक है। बट अगर A टू Z में A को छोड़ के बाकी कुछ भी आएगा तो वो यहाँ आएगा, और A होगा तो इधर जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर A डॉट डॉट Z एक्सेप्ट T, वो इधर आएगा और T सक्सेस पे जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद अगर A से Z तक कुछ भी आ गया तो वो फेल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फिर बन जाएगा। इज इट क्लियर? सिंपल है, केवल बस ये चूंकि यहाँ सिंबल्स बहुत ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया इस तरह का कोई एग्जाम्पल आ जाए तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ बैठ के सारे सिंबल्स लिखें, आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये FA है, आप यू आर डिजाइनिंग द मशीन। सिंबॉलिक है, समझ में आना चाहिए कि व्हाट यू आर डिजाइनिंग ऑन ए पर्टिकुलर सिंबल व्हेन यू आर रीडिंग व्हाट एक्शन यू नीड टू टेक। सो इफ यू आर रीडिंग ए C or R, you will move to this path, and except C and R on all other symbols you will move to this path. Is it? So it must be clear. So you can write like this also. Okay. और जहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट छोटा है, स्मॉल है, वहाँ आप सारी पॉसिबिलिटीज मेंशन कर सकते हैं। मतलब 2-3 ही सिंबल होते तो उनको जो बचे हुए सिंबल्स से, मान लीजिए 5 सिंबल होते तो 2 इधर आ गए तो 3 सिंबल्स हमें यहाँ मेंशन कर देते। बट अगर if the number of symbols is large, so in words also you can write which symbols will lead you on which path. Is it clear? 41? Yes, sir. Okay. Now come on the next problem, that is question number 42.
क्वेश्चन नंबर 42 इज सिंपल। आपने अगर क्वेश्चन नंबर 29 कर लिया है, ठीक है, इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सम ऑफ द डिजिट्स इन W इज डिविजिबल बाई 3, जहां पे सिग्मा 0 1 2 तीन सिंबल्स थे। यहां पर क्या है आपका 4 सिंबल्स हैं, 0 नहीं है, 1 2 3 4 है, ठीक है, तो यहाँ 0 नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सच दैट स्ट्रिंग व्हेन इंटरप्रेटेड एज डेसिमल नंबर सम ऑफ देयर डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 5। इसमें अगर आप 1 2 3 4 नॉर्मल डेसिमल नंबर इधर भी लिखेंगे तो उसमें भी यही आपके अल्फाबेट आते हैं, ठीक है। आगे का अल्फाबेट इसमें नहीं है 5 6 7 8, बट अगर सपोज आप एक नंबर लेते हैं 2 3 1 2, suppose like this, okay, so what will be the sum? If you are treating this as a decimal number, so it is a decimal number. तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा 2 + 3 + 1 + 2, इज इट? तो हमें डिजिट्स का सीधे सम लेना है, ओके, और वो अगर हमारा डिविजिबल बाय 5 है तो डिविजिबल बाय 5 होते ही हमें क्या पता चल गया कि हमारे 5 स्टेट होंगी, एक रिमाइंडर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, रिमाइंडर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, 3 4 इनके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 5 स्टेट बनेगी, ये 5 स्टेट बनेगी, और जो है इन 5 स्टेट का जो है आप फिर FA कंप्लीट कर लीजिएगा। अब वही 0 वाली स्टेट आपकी ऑब्वियस सी बात है स्टार्ट स्टेट होगी, क्योंकि शुरू में जब आपने कुछ भी रीड नहीं करा, कोई डिजिट नहीं रीड की, तो सम क्या है 0 है। जैसे ही पहले डिजिट रीड करेंगे वैसे ही आपका सम चेंज होगा। अगर 1 रीड किया तो सम 1 हो जाएगा, 2 रीड किया तो सम 2 हो जाएगा, 3 रीड किया तो सम 3 हो जाएगा, 4 रीड किया तो सम 4 हो जाएगा, और जो भी आपका सम हुआ उसके अकॉर्डिंग कौन से रिमाइंडर पे आपको जाना है, दैट यू हैव टू डिसाइड, इज इट? So I hope now you can do it. It is same as question number 29. आपने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 29 में ये कॉन्सेप्ट यूज किया, अगर नहीं होगा फिर भी तो आप एक बार पूछ लीजिएगा। Is it clear? Yes, sir. Okay. Now question number 43. ये थोड़ा सा जो है अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपका सिग्मा जो है वो 4 लेटर्स हैं A, B, C and D, and problem says that no string should contain two same letters consecutively. यानी कि कोई से भी 2 लेटर लगातार नहीं आना चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग में कहीं भी ना तो डबल ए आए, ना डबल बी आए, ना डबल सी आए, ना डबल डी आए, ओके। तो ये एक निगेटिव प्रॉब्लम हुई। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हम ये यूज कर सकते हैं सक्सेस पाथ। सक्सेस पाथ हम उल्टी प्रॉब्लम को बनाते हैं कि अगर मान लीजिए डबल ए हो, मेरा स्ट्रिंग सपोज डबल ए को कंटेन करता है, डबल बी को कंटेन करता है, डबल सी को कंटेन करता है, या डबल डी को कंटेन करता है, तो 4 सक्सेस पाथ बन जाएंगे, इज इट? 4 सक्सेस पाथ बन जाएंगे। अब ये तो है पॉजिटिव प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका उल्टा करना है। तो इसमें जो फाइनल स्टेट थी उसको नॉन फाइनल बना दीजिए, और जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स थी उन सबको क्या बना दीजिए, फाइनल बना दीजिए। तो आई होप नाउ यू कैन डू इट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं कहूं कि अगर मेरा सिग्मा A, B है, ठीक है, और मुझे डबल ए और डबल बी वाले स्ट्रिंग चाहिए, यानी कि मेरे स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं या तो डबल ए आए या डबल बी आए, तो मैं सिंपल आराम से ऐसे बना सकता हूं ना, ए ये मेरा फाइनल डबल ए आ गया, ये बी डबल बी आ गया, बाकी ट्रांजिशंस मैं कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। ये मेरे सपोज स्टार्ट स्टेट है, ओके। अब लेकिन मुझे चाहिए इसका उल्टा, मुझे क्या चाहिए, इसका उल्टा, नॉट डबल ए और डबल बी, ठीक है, नॉट डबल ए नॉट डबल बी, यानी कि जो फाइनल स्टेट है ये नॉन फाइनल हो जाएगी, और जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट थी
ये सब क्या हो जाएंगी, फाइनल स्टेट्स हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल ये काम आपको करना है। आई होप नाउ यू कैन डू इट। इसमें बस इसके जो ट्रांजिशंस कंप्लीट करने हैं वो थोड़ा सा आपको ध्यान से करने पड़ेंगे। एक बार इसको अटेम्प्ट करिए, आइडिया मैंने आपको दे दिया है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 44 तो सिंपल है। Yes, sir. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड द होल शीट। अब एक बार जो जो प्रॉब्लम्स अभी इसमें नहीं की हैं आप एक बार अपने आप से बना करके देख लीजिए। ठीक है, अगर स्टिल किसी में प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे भी आप लगातार पूछ ही रहे हैं, तो वैसे ही पूछ सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड यू। और नहीं तो एक आध प्रॉब्लम बची है, ये अगले किसी भी उसमें लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो हमारी तरफ से DFA का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में इसमें अगर कोई प्रॉब्लम बचती है तो वो डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ NFA, वो मैं एक बार जो है उसका लेक्चर भी ले लूँगा, और उसमें अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो डाउट्स क्लियर कर लेंगे। तो अगला जो भी हमारा लेक्चर पड़ेगा उस पर हम जो है NFA का डिज़ाइन डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले इसमें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम बचेगी तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक मंडे में अब नेक्स्ट लेक्चर पड़ेगा, सो मंडे ऑन शेड्यूल टाइम वी विल टेक द लेक्चर। ओके, एनीथिंग एल्स, कैन वी क्लोज? Yes, sir. ओके, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir. अब वैसे आप लोगों को जो है कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि DFA आराम से डिज़ाइन हो सकते हैं। इवन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड DFA भी मैं देख रहा हूँ आप में से कई लोग जो है बना पा रहे हैं। हेलो सर। Yes, confidence Yes, build up sir. हो रहा है। हाँ, ये प्रैक्टिस से ही होगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका जो है आसानी से भी बनेगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और जितना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो नहीं बनाना शुरू करेगा वो कभी नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली अब हम लोग फेस टू फेस नहीं मिल रहे, वरना ये सेशन मैं क्लास में करा था। तो क्लास में जब मैं बोर्ड पे प्रॉब्लम डिस्कस करता, आप लोगों से बनाने के लिए बोलता और आप लोगों के बीच में घूम करके चेक करता, तो उसमें जो नहीं भी बना रहे थे वो भी फोर्स्ड होते बनाने के लिए। अब ये है कि ऑनलाइन बैठ करके मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर सकता, तो जो है अब आप लोगों के ऊपर ही है कि आप में से जो इंटरेस्ट लेकर के शुरू कर देगा। बट अगेन वही मैंने आपको कहा है कि गलत बनाए या सही बनाए, आपने जो साथी नहीं भी हैं क्लास में उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उनके इंटरेस्ट में आप लोग, आप सब साथी हैं तो आप लोग उनसे भी एक बार कहिए कि वो बनाना शुरू जरूर करें। और किसी को भी प्रॉब्लम है किसी भी टाइम व्हाट्सएप पे आप मुझे जो है अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, और मैं उसका जो है रिस्पॉन्स करूँगा जहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल है, तो वो मैं करके आपको जो है आपकी प्रॉब्लम्स रिमूव करूँगा। थैंक यू ऑल। So now you can leave the class. सर If you want to ask anything, yes, बताइए। सर, जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था कि नंबर ऑफ 0 डिविजिबल बाई 3 हो और नंबर ऑफ 1 डिविजिबल बाई 5 हो, तो सर इस टाइप की जब प्रॉब्लम आती है तो कोई इसका स्पेशल फार्मूला वगैरह? नंबर ऑफ जीरोस डिविजिबल बाई 3 ये आज डिस्कस तो किया हमने। सर मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था, मैं देख नहीं पाया ओके सर। वो ओके तो मैं ओके। सर स्पेसिफिक तो हो जाएगा आप क्योंकि आप प्रैक्टिस एक करेंगे काम तो हो करिए, जाएगा। हाँ नहीं, आप एक काम करिए, देखिए ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको टीम से मिल जाएगी। आप एक बार इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके इसको लेक्चर को सुन लीजिए, तो इसमें डिस्कशन हुआ है पूरा, तो आपको आसानी से होगा। मुझे दोबारा बताने से बच जाऊंगा, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके। मैं इसलिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो नहीं भी हैं वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके सुन सके। तो आप अपने बाकी साथियों को जिन्होंने नहीं ज्वाइन किए हैं लेक्चर्स अभी तक, तो वो इसकी रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके इसको कर लें। ये लास्ट के 2-3 लेक्चर जो हैं जिनमें हमने डिस्कस किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट उनको जो है इसमें मिल जाएंगे। ओके, एनीथिंग एल्स? नो? No, sir. Okay, so now I am closing, you can leave.